بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بچوں کا ذوق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سدرا جبین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور صحت بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی اور آپ بہت اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس عشرے میں اپنی زبان زد عام رکھیں یہ دعا، استغفر اللہ من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اور دعاؤں میں رکھیں یاد ہمیں بھی، اپنے پاکستان کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی۔ ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں روز قیامت اس طرح سے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان جب ہم صدقہ و خیرات کریں اور جب ہم خود روزے رکھیں تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے آگے پیچھے کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی اس وجہ سے روزے نہ رکھ رہا ہو کہ اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور ہمیں صدقہ و خیرات کرتے وقت ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یتیموں کو بھی اس صدقہ اور خیرات میں سے کچھ حصہ دیں، کیونکہ بیشتر لوگ اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی لیے آج ہمارے پروگرام میں جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وہ یتیم بچے ہیں جو اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور بورڈنگ سکولز میں رہتے ہیں اور آرفن کیئر ہوم میں رہتے ہیں اور گھر والوں سے دور روزے رکھتے ہیں، اور ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہمارے ہیں وہ ہیں اویس فاروق، اور ان کو تقریباً 4 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ بورڈنگ سکول میں اپنے پیرنٹس سے دور رہ رہے ہیں، اور اس بار یہ رمضان المبارک اپنے گھر والوں سے دور گزاریں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مبین رشید، یہ بھی اسی طرح سے 4-5 مہینے سے یہ بھی بورڈنگ سکول میں رہ رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وقار احمد، بھی ایک آرفن کیئر ہوم میں رہ رہے ہیں اور اس بار یہ بھی رمضان کے روزے جو ہے اپنے گھر والوں سے دور گزاریں گے۔ ناظرین، بچوں سے گفتگو کا سلسلہ ہم مزید بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ ہم سنیں گے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلام کے پہلے ثنا خوان حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور اب حضرت حسان بن ثابت کی سنت کو دہرائیں گے وقار احمد۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام احسان، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام احسان، مدینے والے قائے مقامی ان کے در پر قیام احسان، لبوں پہ نام نبی جب آیا
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, इस बार आप लोग अपने घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में रह के रोज़े रख रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे रोज़ा रखना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है घर से दूर रह के रोज़े रखना अच्छा लग रहा है? जी। क्या चीज़ अच्छी लग रही है इसमें? इसमें हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठते हैं अच्छा। और नमाज की पाबंदी करते हैं। हाँ हाँ। इस वजह से घर में कभी खेलने निकल गए, कभी क्या। अच्छा, यहाँ पे आपको नमाज की पाबंदी कराई जाती है, इस वजह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, माशाल्लाह, बच्चे बड़े ज़ौक वाले हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको घर की क्या चीज़ याद आती है? रोज़े आप लोग घर से दूर रख रहे हो, कुछ याद नहीं आता आपको घर का? आप तो कह रहे हैं जी आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है। आता है। क्या याद आता है? घर में हम सब घर वालों से इकट्ठे मिलकर खाते, इफ्तारी करते थे। अच्छा, इकट्ठे मिलकर इफ्तारी करते थे। और इधर दोस्त होते हैं इकट्ठे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे दोस्त होते हैं, आपके घर पे दोस्त हैं? नहीं, घर पर सब घर वाले होते थे। अच्छा, बहन भाई होते थे। नहीं, उनके साथ मिलकर खाते थे, इधर दोस्तों के साथ। अच्छा, तो घर पे घर वालों के साथ मिलके खाते थे और यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलके खाते थे। तो आपको घर वाले याद आते हैं यहाँ पे, और बस आप इस चीज़ को मिस करते हो कि घर वाले यहाँ पे नहीं है, लेकिन दोस्त जो हैं वो वकार का दिल बहला देते हैं। वकार को तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए, इंसान को मोल्डिंग होना चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी मरहला आ सकता है, आपको किसी भी तरीके से रहना पड़ सकता है, घर वालों से दूर भी और घर वालों के साथ भी। तो ये बच्चे ज़रा जल्दी, इन बच्चों को घर वालों से दूर रहना पड़ा है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ये मरहला कि घर से दूर रह के रोज़े रखना, और फिर घर वालों की भी याद आती होगी, और फिर गर्मी और रोज़े की प्यास। अच्छा, मुझे आप बच्चों ये बताओ कि आपकी सारा दिन रूटीन क्या होती है यहाँ पे? सुबह उठते हैं, अफ्तारी वो सहरी करते हैं। अच्छा। सहरी करके फिर उसके बाद नमाज की तैयारी करते अच्छा, सहरी जब आप करते हो, रोज़ा रखने की दुआ आती है आपको? जी। अच्छा, सुनाओ। वापस दिन नवाइतु मिन शहर रमज़ान। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या करते हो? फिर नमाज के लिए तैयारियां करते हैं। क्या तैयारियां करते हैं नमाज के लिए? वुज़ू शुज़ू करके नमाज में मस्जिद जाते हैं। अच्छा, नमाज जाते हैं पढ़ने, मस्जिद जाते हो, ठीक है। फिर मस्जिद से वापस आके सो जाते हैं। फिर 9 बजे उठकर एकेडमी जाते हैं, वहाँ जाके नीचे पढ़ते रहते हैं। होमवर्क करते हैं। अच्छा, स्कूल में ही आपके एकेडमी और वहाँ जाके पढ़ते हो, और फिर ठीक है, फिर वहाँ से वापस आके वापस नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ। नमाज पढ़ के वापस आते हैं, आके सो जाते हैं या अच्छा। सो अच्छा, रोज़े के असर के दौरान, अच्छा, असर के टाइम उठते हो फिर, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद कुरान पाक की कुरान दावत करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सही। फिर वहाँ अफ्तारी करते हैं। अच्छा, अफ्तारी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको खाने में? खजूर। खजूर। खजूर क्यों पसंद है? ये सुन्नत है। हाँ बिल्कुल नाजरीन, खजूर खाना ना सिर्फ सुन्नत है अफ्तारी में, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि बेहतरीन सहरी खजूर है। खजूर के साथ सहरी करना जो है ना बेहतरीन चीज़ है। और खजूर, और इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि सहरी में जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है, इसलिए सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ आप कि आप लोग अभी घर से भी दूर हो यहाँ पे, ठीक है, और अब हॉस्टल में रह के रोज़े रखना, और अब अगर आपको कभी रोज़ा लग जाए तो फिर आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और प्यास भी लग रही हो, तो फिर क्या करते हो? नहा लेते हो, ठीक है। आपके ख्याल में जब आप नहा लेते हो तो आपको रोज़ा नहीं लगता? नहीं, फिर जिस्म थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर पता ही लेट नहीं जाते हैं, हाँ। लेट जाते हैं तो फिर थोड़ा नींद आ जाती है, फिर सो जाते ठीक है। आप क्या कह रहे हो बेटा? फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं भी। नाज़रीन, आपके लिए एक नई टिप है कि अगर आपको गर्मियों में रोज़ा लग जाए तो आप नहा लें और उसके बाद आप सो जाएं, फिर आपका जो रोज़ा है ना थोड़ा सा टाइम आपका गुजर जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। صلى